Hello, Assalamu alaikum class. So today we are going to continue with our session that we were doing last time. So we were discussing these different financial markets and financial instruments. So while discussing the markets, we had discussed the primary market where the issuers are there. I told you that the IPOs are usually conducted in the primary market. And then the secondary market, the exchanges, okay, these are places where you can exchange these these instruments you bought in the primary market, and now you want to exchange them or sell them. So you can do it in the secondary market, and it provides you a place where you can liquefy your securities. Moving on, there's another two types of market, that is the money market that we were discussing, and the capital market. We'll discuss these in detail today. So the money market instruments are either short term or long term. We had discussed this. We'll discuss this in depth later on. Since we have already discussed this, I'm just going to briefly touch them and then move forward. So we discussed the concept of maturity for debts, especially the debts that we carry, that we buy, the financial instruments that are debt instruments. So they have a maturity, a specific maturity. Maturity means when an instrument becomes payable, that is matured, it becomes mature, so it becomes payable. Then we had discussed liquidity. I believe you all remember. So I'll just explain liquidity in detail. Let me just put it up over here. So liquidity. Okay, so what's liquidity? Well, liquidity is the ability to convert an asset or financial instrument into cash at its original value. Okay, so for example, can I liquidate my cell phone? Can I just, how liquid is my cell phone? Can you imagine that? So for instance, can I sell it in this class? Well, I can sell it. Well, it's not so liquid, because I can sell it to you. Do you want it for $1? Dollar is 150 rupees. Everyone would be interested. I do have an iPhone, an old one, but it's still in good shape. So I think 150 rupees is very good for an iPhone. You may be able to sell it in the market for much more than that. You see, I can sell it at a very less price. I can even, like, for example, if I want to sell my house, okay, so I can sell it for let's say 1 lakh. It might have much more value, okay, but if I want to liquidate it, I can sell it for less. Okay, so this is the concept. जो basic इसके behind concept है कि आप उसको कम पे तो बेच सकते हैं, ठीक है, but not at its real value, जो उसकी असल value है asset की. So you have to sell the asset at its original value. That is called liquidity. So मैंने कहा liquidity का concept मैं आपको clear कर दूं, because this is a very commonly used term जो कि आगे हम बहुत use करेंगे. So you should know the meaning. Moving on, and now we're discussing the types of instruments. So basically we have two types of instruments. I'll write it down for you over here. We have the debt instruments. That is usually associated with they are actually, do I have this? I'll do this. Okay, they're usually associated with creditors who own them. Okay, and then we have the equity, which is actually usually owned by the investors. We call the person who owns equity is called an investor. Okay, I'll try to explain this to you. So debt is actually a claim by someone on the assets of a firm, okay, because they have loaned you some amount. So they're called the creditors. You have to pay them because you owe them that much, okay? So it's sort of an IOU. And then when you discuss equity, equity investments is, you can call it a residual claim. It can be called a residual claim on the assets of a company or any anyone. Okay, so a residual claim on the assets of any institution or any company or any assets. Okay, now what is a residual claim?
रेजिडुअल क्लेम को अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझना है कि हर किसी क्रेडिटर की पेमेंट करने के बाद जो बच जाएगा उसके ऊपर जो क्लेम होगा। यू सी, अगर एक कंपनी लिक्विडेट होती है या कभी भी उसको बंद करना है या कुछ भी करना है, सबसे पहली पेमेंट्स क्रेडिटर्स को की जाती हैं। बिजली का बिल कोई रहता था वो पे किया जाएगा, कोई कर्जे लिए हुए थे वो वापस किए जाएंगे, कोई स्टॉक की पेमेंट करने वाली रहती थी वो पहले पेमेंट की जाएगी। सब कुछ बेच के या सब कुछ खत्म करके सारे एसेट्स को लिक्विडेट करके सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा। उसके बाद जो बच जाएगा उसके ऊपर जो क्लेम है वो इक्विटी का होता है, वो इन्वेस्टर्स का होता है। इन्वेस्टर्स बेसिकली इक्विटी इन्वेस्टर जो है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स कैन बी डिफाइंड एज so we were discussing the equity. So equity is basically the residual claim of investors on an asset, and equity is basically no, how do you define an investor? Okay, what's an investor? Investors basically, and especially equity investments, okay, उनको कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये बेसिकली फाइनेंशियल में हमने डिस्कस किए थे फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो एनी क्लेम, एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होल्डर इज एन इन्वेस्टर, ठीक है। जिसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको खरीदा हुआ है, वो इन्वेस्टर होगा। वो बेसिकली इक्विटी के अगेंस्ट अपना रिटर्न क्लेम कर रहा होगा। अगेन इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सॉरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, उनके अगेंस्ट भी वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। जो इन्वेस्टर कहलाएगा वो हमेशा वो होगा जो इक्विटी इक्विटी वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। अब इसके अंदर जो ये discussion here, it gets wide. Sometimes it would be, for example, so investor would be in some sort of a situation where investors can invest, like investors can be defined in a very different context, okay। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो कभी कभी इसको बहुत नैरो कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाता है कि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट किसी ने की हुई है किसी फर्म में किसी जगह पर, जस्ट दैट वुड बी काउंटेड एज एन इन्वेस्टमेंट। अदर जो हमारे डेफिनेशन ब्रॉड है, जरा ब्रॉडर डेफिनेशन उसके अंदर ये है कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है जो कि इक्विटी के ऊपर बेस्ड है, वो इन्वेस्टर कहलाएगा। इसमें ब्रॉड पूरी कैटेगरी इंक्लूड हो जाती है। इनफैक्ट दीज डेज एक और जो कैटेगरी इसमें आ जाती है वो है कि किसी भी एसेट में किसी ने अगर इन्वेस्ट किया है, दैट वुड बी एन इन्वेस्टर। तो एसेट्स भी जो रिटर्न के लिए, बेसिकली जो रिटर्न के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसको हम इन्वेस्टर काउंट करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, सो ओके, अब आपने रिटर्न के लिए इन्वेस्ट किया, तो एक बहुत कॉमन इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज प्रॉफिट। ओके, सो लेट मी पुट इट हियर, प्रॉफिट। ओके, सो व्हाट इज प्रॉफिट? How do you tell what is profit? Okay, uh, we can define profit as any investment that would generate an economic return. Okay, we invest, हम किसी भी बिजनेस में किसी भी इन्वेस्टमेंट में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम एक इकोनॉमिक रिटर्न अर्न करें, दैट रिटर्न इज प्रॉफिट, ठीक है। सो इकोनॉमिक रिटर्न जो है आपका इकोनॉमिक बिजनेस के लिए एक जो रिटर्न उसके ऊपर आता है वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। सो अगेन एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि फाइनेंस में प्रॉफिट नहीं है। You need to remember this. This is a term that we borrow from accounting, from economics, financial economics. Finance में जो चीज हम यूज करते हैं, I'll tell you, that is return. You see, so कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने की, जो हम ऊपर इन्वेस्टर डिस्कस कर रहे थे, उसके ऊपर उसको रिटर्न मिलता है। डिविडेंड इज द रिटर्न ऑन इक्विटी, इसी तरह से इंटरेस्ट इज द रिटर्न ऑन डेट। तो फाइनेंस में जब हम बात करेंगे अर्निंग्स की, इकोनॉमिक रिटर्न की, तो वो बेसिकली रिटर्न होता है। इट इज नॉट कॉल्ड प्रॉफिट। तो सो हम उसे जब डिस्कस करते हैं वी कॉल इट अ रिटर्न, ठीक है। तो किसी भी एसेट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली फॉर रिटर्न इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की टर्म्स के अंदर हम इसको प्रॉफिट या इकोनॉमिक रिटर्न जिसे हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वी बाय एन एसेट। तो फॉर एग्जांपल हमने डिपार्टमेंट के लिए जो स्टूडेंट्स की चेयर्स हैं वो परचेज की, ठीक है, डिपार्टमेंट की जो स्टूडेंट चेयर्स हैं। सो डू यू थिंक इट्स एन एसेट के कि उसके ऊपर हमें कुछ रिटर्न प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं? यस,
क्योंकि हम उसके ऊपर वो शेयर्स क्यों परचेज की, ताकि वो उनसे इनडायरेक्टली हम इकोनॉमिक रिटर्न जनरेट कर सकें। अब ये प्रॉफिट नहीं है, ये रिटर्न है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड टू रिटर्न। लेट मी डिस्क्राइब द एसेट फॉर यू फर्स्ट, ठीक है। मैं पहले आपको जरा एसेट क्लैरिफाई कर दूं, व्हाट्स एन एसेट। सो लेट मी एक्सप्लेन, ओके। सो व्हाट इज एन एसेट, हाउ डू यू कैरेक्टराइज एन एसेट, एसेट की क्या खासियत होगी कि हमने कहा एसेट्स में इन्वेस्ट करने, ओके। व्हाट इज एन एसेट, किस चीज को आप एसेट कहेंगे? लेट्स सपोज सनलाइट, इज दैट एन एसेट? वेल लेट्स सी, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करती है जो एक एसेट को होनी चाहिए? सो फॉर एन एसेट टू बी एन एसेट, it must have four values, okay, four characteristics, okay. The first one is value. It must have some value, okay. It must have some value to be an asset. The second thing that it must have, that it should be owned, like, sorry, like I should be able to own it, okay. So it should be ownable, I should be able to own it. And when I own it, I would also want the third characteristic, to control it, because I don't want to lose control of my asset. By the mean of control, I can say to use it, okay. I should be able to use it, I should be able to control it, on off, किसी चीज को कर सकता हूं मैं, किसी चीज को इस्तेमाल कर सकता हूं, बेसिकली जिससे मेरा मतलब है कि इस्तेमाल कर सकता हूं। एक, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा, उसकी मिल्कियत मेरी होनी चाहिए, और तीसरा, मैं उसको कंट्रोल कर सकूं, मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं बेसिकली। और चौथी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट शुड बी एबल टू जनरेट सम इनकम। ये हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एसेट्स की बेसिकली बात करें, एसेट्स में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनके लिए। तो उसकी जो एक और इंपॉर्टेंट कैसे कि वो इनकम अर्न कर सकता हो एसेट, ठीक है। इन चार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर हम किसी भी एसेट को क्लासिफाई करते हैं। सो मैंने भी कहा सनलाइट हमने भी डिस्कस की, तो क्या सनलाइट एक एसेट हो सकता है? एक ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है, उसका क्या एक एसेट सनलाइट हो सकता है? डज इट हैव वैल्यू? यस, इट डज हैव वैल्यू। कैन वी ओन इट? नो। कैन वी कंट्रोल इट? Hardly, maybe not, okay. But does it generate income for us? No. So sunlight cannot be an asset. इसी तरह से let's say air in the room, okay, that you're breathing. So जो क्लास के अंदर आपकी एयर होती है, does it have value? Yes, it does. Do you own it? No. Do you control it? No. Can you generate income with it? No. So it cannot be classified as an asset. Okay, what can be classified? जो chairs की हमने भी बात की, तो chairs की value है, yes, they do have a value. Do the university own it? Yeah, मैं ऑन नहीं कर रहा, आप ऑन नहीं कर रहे, लेकिन यूनिवर्सिटी तो ऑन कर रही है, तो यूनिवर्सिटी ओन। एंड कैन द यूनिवर्सिटी कंट्रोल इट? क्योंकि जो ओन कर रहा है उसका कंट्रोल होना है, यूज वो कर रहा है, तो यस, यूनिवर्सिटी से यूज कर रही है। और क्या यूनिवर्सिटी से इनकम जनरेट कर रही है? तो यस, उस चेयर्स को इनडायरेक्टली यूज करते हुए स्टूडेंट्स पे आके बैठते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी इनकम जनरेट करती है। तो ये एसेट्स की चारों कैटेगरीज के ऊपर क्लासिफाई होकर ये चेयर जो होगी ये यूनिवर्सिटी का एसेट होगी, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ वी क्लासिफाई एन एसेट, ठीक है, कि एक एसेट क्या होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट बेसिकली चार वैल्यूज होंगी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो डिटरमिन करेंगे कि ये एसेट है जिसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। दैट इज कि उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसको कोई ना कोई ओन करेगा, किसी की मिल्कियत में होगा, उसके बाद उसका कंट्रोल किसी के पास होना चाहिए जिसने इन्वेस्ट किया उसके अंदर बेसिकली, जो उसको यूज कर सकता हो, और फाइनली वो उस बंदे के लिए इनकम जनरेट कर सकता हो एसेट, देन इट वुड बी क्लासिफाइड एज एन एसेट। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी एसेट क्लासेस, ओके। सो लेट मी पुट इट अप ओवर हियर, यहां जगह नहीं है, मैं यहां डाल देता हूं। So asset classes, okay. या बेसिकली एसेट क्लास जिसे हम कहते हैं कि एक एसेट की क्लास, पर्टिकुलर क्लास। नाउ अभी ये कोई वो कास्ट सिस्टम वाली क्लास नहीं है, यहाँ जब मैं एसेट क्लासेस की बात कर रहा हूँ, दिस इज द डिफरेंट थिंग। सो डिफरेंट टाइप्स जो कि एसेट्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन है कि एक टाइप के एसेट्स एक कैटेगरी में, दूसरी टाइप के दूसरी में, तीसरी टाइप के तीसरी कैटेगरी में, तो बेसिकली एसेट की क्लासिफिकेशन हो रही है। सो वन टाइप कुड बी स्टॉक्स एंड इक्विटी, ठीक है, जिसे हम स्टॉक कहते हैं या इक्विटी कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन एसेट क्लास, स्टॉक्स एंड इक्विटीज। देन देयर इज अनदर टाइप जिसके अंदर हम, आपको इस बात समझ आ गई, बॉन्ड्स। Now bonds are more like loans, okay. So एक स्टॉक्स एंड इक्विटीज जिसके अंदर हम शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। बॉन्ड्स जो डिफरेंट लोन एग्रीमेंट्स बेसिकली होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं,
ये प्राइवेटली इशूड बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। देन कम्स इन करेंसी। ये मुझसे उस दिन एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, आई डिड रिप्लाई टू दैट इन अ डिफरेंट मैनर। लेकिन जब हम एसेट्स की बात करें तो करेंसी को भी एज एन एसेट ट्रेड करके इसके ऊपर, क्योंकि अब डेरिवेटिव्स भी आते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, तो इसलिए हम इसको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए, रिटर्न के लिए यूज कर सकते हैं करेंसीज को। बट उस दिन आई थिंक क्वेश्चन कुछ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में था, इसलिए मैंने उसको अलग क्लासिफाई किया था, ठीक है। सो आई थिंक वो एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन था, तो वो एक और चीज थी। और एक्चुअल करेंसी एज अ कमोडिटी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं उसको क्लैरिफाई करूं जस्ट इन केस अगर आप में से किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है। एज अ कमोडिटी और इसके साथ जो डी ट्रांजेक्शन होगी एज एन एसेट हम इसको यूज करेंगे, जो कि इसकी एक्सचेंज है, जैसे कि लेके वो जो एक्सचेंज जहां पर आप करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं या उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन तो मुझे अब याद नहीं है, तो उसके ऊपर अभी हम आएंगे वो क्या है, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। सो सॉरी, करेंसीज। नेक्स्ट, ओके, वी हैव गॉट स्टॉक, बॉन्ड्स, देन करेंसी। एक और चीज जिसके ऊपर हम एसेट क्लास बनाते हैं, दैट इज रियल एस्टेट। Okay, so real estate, and finally we have another thing जिसके ऊपर हम एसेट की क्लास बना सकते हैं, that is commodities. Okay, अब commodities के अंदर further सब टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर 3 फर्दर सब कैटेगरीज जिनके अंदर हम commodities को डिवाइड कर सकते हैं। How do I build over here? So I'll try to just put over here somehow. I can just go with this commodities. Okay, commodities के अंदर फिर the what can we do? How do we differentiate? Okay, so I think this is fine. Okay, the commodities में सबसे कॉमन commodities के ऊपर ट्रेडिंग होती है जिसके अंदर ग्रेन्स आ जाते हैं, ठीक है। ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब ये व्हीट, बार्ले, कॉर्न, ये बेसिकली जो ग्रेन्स आपके हैं सारे, ठीक है। उनके ऊपर जो कमोडिटीज हैं वो कमोडिटीज हैं। देन वी मूव ऑन टू एनर्जी। यू सी, एनर्जी भी एक कमोडिटी है। एनर्जी के लिए, एनर्जी की जो कमोडिटीज है बेसिकली, जिसके अंदर आपके लिए कोल है, जिसके अंदर आप ऑयल, इसी तरह से नेचुरल गैस, इसी तरह से कोई भी इस तरह की जो कमोडिटी जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इवन इट कुड बी इवन यूरेनियम, मे बी, आई डोंट नो अबाउट दैट। ओके, सो दैट इज द एनर्जीज। एंड देन दी मटीरियल्स या मेटल्स एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं, मेटल्स बेसिकली जिसे हम कहते हैं। तो नंबर 3 इज मेटल्स। फर्दर मेटल्स के अंदर भी 2 क्लासिफिकेशंस हैं, ओके। ये मैं यहीं पर क्लैरिफाई कर देता हूं आपको। नंबर 1 इज द बेस मेटल्स, ओके। कॉपर, जिंक, आयरन, सॉरी, कॉपर, आयरन, ब्रास, और ये सारे जो नॉर्मल नॉर्मल कॉमन मेटल्स हैं जो इजीली अवेलेबल हैं या जो अबंडेंटली अवेलेबल हैं ऑन अर्थ, ओके। और इसके बाद दूसरा जो है, दैट इज प्रेशियस मेटल्स, ठीक है। प्रेशियस मेटल्स कौन से आ जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम, सॉरी टाइटेनियम, वी कॉल इट, आई एम फॉरगेटिंग, गोल्ड है, सिल्वर है, इसी तरह से इट्स प्लैटिनम, ओके। एंड इस तरह से एक दो मेटल्स और हैं जो बड़े ही रेयर हैं, दीज आर कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स, ओके। सो दीज आर वेरी रेयर, दैट इज दे आर कॉल्ड प्रेशियस मेटल्स। तो इन सब की जो ये जो चीजें हैं, ये सब कमोडिटीज के अंदर आ जाती हैं, और ये सब डिफरेंट एसेट्स की क्लासेस हैं जो कि हम डेवलप करते हैं। मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि हमने इनको क्यों यूज किया और इनके साथ अब हमारा लिंक क्या है। सो मूविंग ऑन, फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टॉक्स हैं, इफ वी गो बैक टू स्टॉक्स इन इक्विटी, सो इफ यू सी, स्टॉक के अगेंस्ट में हम रिटर्न अर्न करते हैं, I mean, सारे, क्योंकि एसेट क्लास के अगेंस्ट में रिटर्न मिलता है, हम रिटर्न अर्न करते हैं। वी वोंट कॉल इट प्रॉफिट, यू रिमेंबर दिस फ्रॉम दिस सेक्शन जो मैंने आपको भी बताया, दिस इज रिटर्न। तो स्टॉक और इक्विटी के अगेंस्ट रिटर्न में हमें क्या मिलता है? डिविडेंड,
ओके। बॉन्ड्स के अगेंस्ट हमें रिटर्न में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। वैसे तो कूपन पेमेंट भी वापस मिलती है, लेकिन वो हम एक्चुअली रिटर्न नहीं है, लेकिन चलें, कूपन और इंटरेस्ट आप ले सकते हैं इसके अंदर। ओके, इसके बाद आ जाता है करेंसी। तो करेंसी के अगेंस्ट भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ रिटर्न। अभी इनको हम क्लासिफाई करेंगे, जब डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको, तो आप सबको बेटर समझ आएगी कि इनके अगेंस्ट जो रिटर्न है वो किस तरह हम सेटल करते हैं। और ओके, रियल एस्टेट के अगेंस्ट हमें क्या चीज मिलती है? दिस इज रेंट। ओके। और कमोडिटीज के अगेंस्ट, ये क्योंकि एक जरा डिफरेंट टाइप का एरिया है, तो इसे हम कहते हैं लीज या लीज रेट बेसिकली। ठीक है। सो अच्छा, रेंट और लीज के अंदर डिफरेंस भी मैं आपको क्लैरिफाई करूं, देयर बेसिकली द सेम थिंग्स, बट रेंट इनडेफिनेट होता है। ओके, कि आप मंथली पेमेंट मंथली होती है, लेकिन इनडेफिनेट है कि 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल के लिए हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट डिफाइंड। लीज हैज अ डिफाइंड टाइम पीरियड, होती ये भी मंथली पेमेंट ही है, लेकिन इसका पेमेंट टाइम पीरियड डिफाइंड होगा। 1 साल का है, 6 महीने का है, 10 साल का है। टाइम पीरियड वुड बी डिटर्मिन्ड, प्री डिटर्मिन्ड, और उसके बाद ये लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। मूविंग ऑन, जो हमारा आज का एक और टॉपिक है, जो हम, क्योंकि हम ब्रीफली इसको सारे को टच करें, इंट्रोडक्शन हमारा चल रहा है अभी, तो हम डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। ठीक है। ओके, व्हाट इज अ डेरिवेटिव? अगर डेरिवेटिव्स को हम वैसे तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे फ्यूचर के अंदर, बट जस्ट एज अ व्हाट यू कैन से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और इंट्रोडक्टरी, क्योंकि हम ये सारी चीजें आगे डिस्कस कर रहे होंगे, तो बीच में कहीं और डेरिवेटिव्स को जिक्र आ सकता है। व्हाट इज अ डेरिवेटिव? ओके, सो डेरिवेटिव, जो इसका नेम है यही सजेस्ट करता है, डेरिवेटिव इज एन एसेट दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम another asset or commodity or thing. ठीक है। Basically it's something that derives its value from something else. It has no intrinsic value. ये अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव। सो फॉर एग्जांपल, इक्विटी डेरिवेटिव जो है वो इक्विटी या स्टॉक से, स्टॉक डेरिवेटिव जो है, इक्विटी डेरिवेटिव बेसिकली वो स्टॉक से अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है। इसी तरह से बॉन्ड्स के डेरिवेटिव जो है वो बॉन्ड से अपनी इक्विटी अपनी वैल्यू सॉरी डिराइव कर रहा है। इस तरह से करेंसी डेरिवेटिव्स होते हैं जो करेंसी से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं। इसी तरह से वेल, रियल एस्टेट डेरिवेटिव्स अब आने शुरू, ये एक न्यू फिनोमेना है, सो इट इज नॉट वेरी पॉपुलर, लेकिन ये भी अब अवेलेबल है। इसके अलावा कमोडिटीज के ऊपर डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, जो कमोडिटीज के बेसिस के ऊपर अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं। अब डेरिवेटिव्स को समझना जरा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहा, क्योंकि फिर आपको पूरा डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव्स अपनी वैल्यू कैसे फिर किसी कमोडिटी से डिराइव करें, बस फॉर यू इट इज बेटर टू नो दैट इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम समथिंग एल्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सो डेरिवेटिव्स हो गए। इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सचेंजेस। ओके, सो वो एक्सचेंजेस आर द प्लेसेस जहां पर आप बेसिकली, ये सेकेंडरी मार्केट्स हैं, प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी मैंने आपसे डिस्कस की थी, वेयर यू कैन एक्सचेंज the securities, the financial instruments that you have, basically usually इसको जो रेफर किया जाता है वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ ही रेफर किया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा और एक्सचेंजेस भी हो सकती हैं जहां पर बॉन्ड्स एक्सचेंज हो सकती हैं, बॉन्ड एक्सचेंज होगी, करेंसी एक्सचेंज होगी। करेंसी एक्सचेंज ऐसे आई सेड डोंट थिंक सो देयर इज अ करेंसी एक्सचेंज। तो इस तरह से रियल एस्टेट की कोई एक्सचेंज नहीं होती, कमोडिटीज एक्सचेंजेस होती हैं। ठीक है। करेंसी एक्सचेंज के लिए जो एक और टर्म हम यूज करते हैं, मैं उसको आपको यहाँ बता देता हूँ, दैट दीज आर कॉल्ड ओटीसी मार्केट्स, ओवर द काउंटर मार्केट्स। बेसिकली एक्सचेंजेस हैं एक टाइम की, लेकिन यहाँ क्योंकि एक्सचेंज और ओटीसी मार्केट्स में बेसिकली डिफरेंस ये है कि एक्सचेंजेस आर हाईली रेगुलेटेड, वहां रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, पूरी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एक्सचेंजेस चल रही होती हैं। जबकि ओटीसी मार्केट इज मोर लाइक द करेंसीज जैसे एक्सचेंज की जाती हैं। आप गए करेंसी एक्सचेंजर के पास, मनी एक्सचेंजर के पास, उसको आपने रुपीज दिए और डॉलर्स ले लिए, डॉलर्स दिए और पाउंड्स ले लिए, सो दैट इज कि आपने बस एक चीज दी और दूसरी ले ली। वहां पर कोई बहुत ज्यादा रेगुलेशन इस तरह से रिलेटेड नहीं है, और बहुत अगेन एक्सचेंज के अंदर बहुत ज्यादा बायर्स और सेलर्स एट एनी गिवन टाइम अवेलेबल होते हैं, जबकि ओटीसी मार्केट इज अ बिट डिफरेंट। ओके, जैसे एक्सचेंज, जैसे अपने मनी एक्सचेंज की अभी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दी मनी एक्सचेंज की, उसी तरह से ओटीसी एक्सचेंज बेसिकली मनी एक्सचेंज जो आपका है वो ओटीसी एक्सचेंज है, एक किस्म की ओटीसी मार्केट है। उसके भी हम एक्सचेंज नहीं कहते, ओटीसी मार्केट कहते हैं, ओवर द काउंटर मार्केट। ओके, let me just clean, can I clean or I can move?
ओके, आई कैन हैव अ न्यू वन, राइट। सो अब हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो मैंने आपसे कहा था कि हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अभी हम सिर्फ इनको टच करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत डिटेल में लेटर हम इसको डिस्कस करने ही वाले हैं। ओके, सो इसमें सबसे पहला जो एक इंस्ट्रूमेंट आता है वो है कमर्शियल पेपर। देन इसके अंदर एफईडी फंड्स हो जाते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेडरल जो फंड्स होते हैं, ठीक है ना, एफईडी फंड्स। और ये हम जब अब जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रेपोज होते हैं, रीपरचेज एग्रीमेंट्स होते हैं ये। These are repurchase agreements. Then number 4 are treasury bills. Okay, then number 5, we have got negotiable CD, certificates of deposits. Number 6, bankers acceptances. So these are the money market instruments. Okay, these 6 are the money market instruments. Capital market instruments में मैं साथ ही आपको बता देता हूँ। Sorry. So capital market instruments, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे later on. Number 1, stocks. Okay. Yeah. Number stocks, then bonds, and lastly mortgages. Mortgages को बड़ा अब नैरो लिया जाता है, बट आप सब इसको यूजुअली एसोसिएट करेंगे बेसिकली विद होम लोन्स, जिसके अंदर होम को एज अ मॉर्गेज रखा जाता है, एज अ कोलैटरल रखा जाता है घर को, और उसके अगेंस्ट मॉर्गेज लिया जाता है। तो होम लोन्स को ज्यादातर मॉर्गेज समझे, लेकिन मॉर्गेज बेसिकली लोन है जिसके अगेंस्ट घर को गिरवी रखा गया है। सो इस लोन को आप जिस चीज के लिए मर्जी यूज करें, इसके आप घर खरीद लें, इससे आप फॉरेन हॉलिडे पे चले जाएं, इससे आप एक बिजनेस शुरू कर लें, इससे आप गाड़ी नहीं ले लें। सो बेसिकली मॉर्गेज एक सिक्योरिटी को, एक आपके एसेट को एज अ लोन रख के उसके ऊपर मॉर्गेज इशू किया गया, ठीक है। जैसे बॉन्ड के अंदर जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं। बॉन्ड्स की मैंने आपको टाइप्स बताई थी, इसके अंदर मैं आपको फिलहाल यही बता देता हूँ ऐसे ही। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, उसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ट्रेजरी, ठीक है, कि गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के बेसिकली इसके अंदर बॉन्ड्स हो सकते हैं। एक और चीज इसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ओके, सॉरी, इसके अंदर मैं एक चीज जो भूल गया था, लोन्स। लोन्स इसकी 4th कैटेगरी है, यही मैंने लिख दिया है। ऑल मॉर्गेज इज आल्सो अलोन, लेकिन लोन्स भी इसी का कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट का पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो लोन्स भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं जस्ट फॉर योर रेफरेंस, लोन्स भी इसी का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने आज डिस्कस करने हैं, ताकि हम इसको कंटेंट को यहाँ कंक्लूड कर सकें, फिर हम नेक्स्ट से सेशन से स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज रेगुलेशन। सो रेगुलेशन बेसिकली गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं कि इन सारी रेगुलेशंस को फॉलो करना है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड उसके अंदर जो जो एग्रीमेंट्स होंगे और सब कुछ, उसके लिए जो रेगुलेशंस हैं वो गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी एजेंसीज भी बनाई थी, ताकि किसी को, एक पर्टिकुलर पार्टीज को नुकसान ना हो और दूसरों को बहुत ज्यादा उससे फायदा ना हो, और सबका इक्वल बेनिफिट होता रहे, ठीक है। इसलिए रेगुलेटरी एजेंसीज बनाई जाती हैं जो इन रेगुलेशंस को एनफोर्स करवाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमने जो आज डिस्कस करना था एक कॉन्सेप्ट, वो है एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, ठीक है। एप्रिसिएशन बेसिकली किसी भी एसेट की वैल्यू के अंदर इजाफा हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे एप्रिसिएशन हो गई है, वैल्यू एप्रिसिएट हो गई है। और इसी तरह उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी तो हम उसे कहेंगे ये डेप्रिसिएट हो चुकी है वैल्यू,
कम हो चुकी है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट पीरियड, कि वो टाइम पीरियड जिसके अंदर जिस टाइम पीरियड में आपने एक चीज के अंदर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है, इन्वेस्टमेंट होराइजन ये तो कि आपने जो सोचा है कि मैंने आज ये घर खरीदा है तो मैं इसको 1 साल रखूंगा फिर बेच दूंगा, इतना मुझे प्रॉफिट हो जाएगा रफली। ये बेसिकली ये कि 10 साल रखूंगा, 5 साल रखूंगा, कोई भी सिक्योरिटी खरीदी है मैं शेयर ये 1 साल रखूंगा, 2 साल रखूंगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। एंड हाँ, बाय द वे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बगैर फाइनेंस इज इनकम्प्लीट, रिस्क। सो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कॉन्स्टेंटली आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ मैं इसके ऊपर आपसे जो डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है कि व्हाट इज रिस्क, व्हाट डू यू थिंक इज रिस्क। ओके, सो व्हाट इज रिस्क? ओके, रिस्क इज द पोटेंशियल चेंज इन वैल्यू। ओके, चांसेस ऑफ लॉस भी इसको कहा जाता है कि जो चांस ऑफ लॉस है या पोटेंशियल चांस ऑफ लॉस है, लेकिन जो रिस्क की प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम कर सकें तो दैट इज द पोटेंशियल चेंज इन वैल्यू। रिस्क गोज बोथ वेज, पोटेंशियल प्रॉफिट एंड पोटेंशियल लॉस, रिस्क में दोनों इंक्लूडेड हैं। ठीक है, पोटेंशियल प्रॉफिट एंड पोटेंशियल लॉस, सो द पोटेंशियल चेंज इन वैल्यू इज रिस्क। ओके, इसके अलावा फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने क्लास में भी ये डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, आपको याद होगा, डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि जी आप एक ही तरह के एसेट्स नहीं रखते, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, या जस्ट डोंट हैव जस्ट अ सिंगल थिंग, कि एक ही चीज आपके पास हो और अगर उसको कोई नुकसान हो जाए तो बस फिर आपके सारे के सारे पैसे डूब जाए। तो आप डाइवर्सिफाई करते हैं, कुछ ये कुछ ये कुछ ये कुछ ये, तो आप डिफरेंट टाइप के एसेट्स। इसकी जो एग्जांपल मैं लेता हूँ वो इस तरह लेता हूँ कि एक तो ये कि वो जो एग्स इन बास्केट है, तो उसका जो मैं प्रॉपर इसका जो डेफिनेशन देता हूँ कि एक ही बास्केट में सारे एग्स की जगह यू हैव स्मॉलर बास्केट्स स्कैटर्ड अराउंड, और उनके अंदर आपने एग, एप्पल, कोई और चीज, कोई ग्रेन्स, कोई और चीज, कि वो डिफरेंट टाइप की चीजें हो ताकि वो और एक ही बास्केट में डिफरेंट बास्केट्स में, ताकि वो स्पॉइल ना हो, खराब ना हो। एक जाए तो कोई बात नहीं, एग्स पे ब्रेक हो सकते हैं, और एक बास्केट का होगा ना, बाकी चीजें तो बच जाएंगी। सो समथिंग लाइक दैट। मैं उसकी एनालॉजी जरा डिफरेंट इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। इसी तरह से हेजिंग, हेजिंग भी बेसिकली रिस्क रिडक्शन की टेक्निक है, डाइवर्सिफिकेशन भी रिस्क रिडक्शन की टेक्निक है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। बेसिकली आप रिस्क को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर रिस्क कहीं पर आ सकते हैं तो उसको आप कंट्रोल करने के तरीके हैं, हेजिंग का भी, डाइवर्सिफिकेशन का भी। ठीक है, तो हेजिंग के अंदर भी आप अपने रिस्क को हेज कर लेते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी का कंटेंट जो है वो मैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शेयर करूंगा, फिर हम इसके अंदर चैप्टर 2 के अंदर जाएंगे और उसकी डिस्कशंस करेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।